चार लोग क्या कहेंगे, that becomes the topic of discussion of the house. या दिस हैपेंस अ लॉट क्योंकि पेरेंट्स जो जनरली इंडियन पेरेंट्स हैं दे सीक द अप्रूवल ऑफ सोसाइटी। आपने अगर लाइफ में कोई डिसीजन लिया है, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, पहला थॉट जो ये आता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, रिलेटिव्स चार क्या लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे सब। फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, वो चार लोग क्या बोलेंगे। एंड आई एम लाइक, कहाँ है वो चार लोग, मुझे भी मिलवाओ मुझे नहीं दिखते हैं चार लोग। Thank you so much, Ravina, for being on our parenting podcast by SAR Holistic Wellness. Hi, I'm Reena Chopra, the psychologist and a हाय mom. रीना, Very welcome. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Okay, इट्स अ प्लेजर Ravina. टू बी हियर। Yeah, it's lovely to see you. You're looking very beautiful and pretty today, glowing all the way. And tell me थैंक यू। something, since you're a content creator yourself, and I've seen your videos, you talk a lot about toxic parenting and unfiltered and unapologetic views about parenting. So, since I'm या from a different generation, I'm 43 right now, and the kind of parenting that I have gone through, for us, parents are like God, always. And it is not only हम्म। with me, with everybody of my generation. We never spoke. Abhi tak we like get jitters if we have to utter our mouth and open it up in front of our parents. कि पापा बैठे हैं या तो हम न्यूज चैनल भी चेंज नहीं कर सकते थे, हम ऐसे पीछे ही बैठते थे और अगर कुछ ऐसा ऑब्सीन या ऐसा कुछ कंटेंट आ गया टीवी पे या किसिंग विसिंग आ गई तो हमें कमरा छोड़ के जाना ही पड़ता था। तो इस तरह का बिहेवियर हमारा रहता था बिकॉज वी हैव बीन कंडीशनड इन अ सर्टेन वे। बट नाउ थिंग्स हम्म। हैव चेंज्ड। अ 3 year old boy, 4 year old boy, girl holds the remote as a king of the house and the papa has to sit behind the boy to ensure that या the ट्रू। information is finished और वो जो भी देख रहा है वो देख ले ताकि वो टेंट्रम थ्रो ना करे और पीस ऑफ द हाउस इज मेंटेन्ड। So this far हम्म। evolved into parenting. Now, earlier the parents were taking the front row. Now the children slowly are taking the front row, and things are really changing. So, what is the difference that you have experienced, and what is your opinion around it? आप क्या सोचते हो कि कैसे change हुआ है? How was your childhood? Give us an overview around it. Okay, so this is a great question. See, you said you are from in your 40s right now, so आपका childhood was very different, right? I'm in my 30s right now. So A decade. I think generation, पूरा एक हाँ 20 साल का वो, गैप है हमारे में। हाँ डेकेड का गैप है, राइट। सो आई बिलोंग फ्रॉम द मिलेनियन जनरेशन Yeah. बेसिकली। सो या, तो आई थिंक ये जो आपने बात बोली ना कि एक जो पेरेंट्स का जो डर होता था पहले, स्पेशली फादर फिगर का जो डर होता था, आई थिंक वो हमारे टाइम में भी था ही कहीं ना कहीं। आई वुड से बिकॉज जो हम अर्ली 90s के बच्चे हैं, तो हमारे टाइम में भी ये होता था कि फादर इज द हेड ऑफ द हाउस एंड द remote of the TV is always in his hand. If he's watching the news channel, don't you dare to change the channel. Yes. I think that was there in that time as well. Yes. Yeah. So I guess, yeah, I agree. And I guess the drastic change has gone into parenting because nowadays you don't see this. And I guess even the children from the late 90s, में जो पैदा हुए हैं, even they had that thing that they had that power in the house that कि they are the decision makers. Children, parents cannot argue with them, they have to like उनकी बात माननी पड़ती थी, ऐसा होता था। आई हैव सीन दैट, जो मेरे यंग जो जनरेशन है, आई हैव सीन देम। सो या आई गेस ऑन जो आज की जनरेशन है, उनको तो इतनी लिबर्टी है कि यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन से एनीथिंग, एंड पेरेंट्स चुपचाप और तो सुन रो रहे हैं आपकी दो, बात थोड़ा को। सा चिल्ला दो तो फटाफट आपकी डिमांड पूरी कर दी हाँ, जाएगी। पर आप चिल्ला नहीं सकते हो आजकल। आजकल पूरा वो सिस्टम ही बदल गया है। आई हैव सीन दैट, यू हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन, यू हैव टू बी, बहुत आराम से बात करनी पड़ती है। आप जरा सा कुछ बोलोगे, वो कुछ का मानना कुछ तो कर दूर की देंगे। बात है, हमारे टाइम पे तो हाथ चलाना बस नॉर्मल, लाइक लगा दो या एक। इट वाज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। कैजुअली ही मार दिया जाता था, पेरेंट्स पहले ये करते थे, हमको भी पड़े हुए हैं थप्पड़, तो वो होता ही था। बट आई गेस दैट इज नॉट द थिंग हियर, एंड आई एम ग्लैड कि ये पेरेंटिंग अब बदली है बहुत ज्यादा, स्पेशली कॉन्शियस पेरेंटिंग इज देयर, जो पहले नहीं थी। पेरेंट्स वर नॉट कॉन्शियस बिफोर, एंड नाउ दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। इमोशन रेगुलेशन एंड एवरीथिंग। सो टेल मी रवीना, लॉट ऑफ पेरेंट्स या। टेल मी मैम, हम तो मार खा खा के बड़े हुए हैं तो हम कौन सा हम्म। पड़ गए। देखो मैं आज सी हूँ, मेरी पत्नी जो है
She's also in a reputed college or university teaching. So, do you think it really does not matter that you have been hitting a child all through his or her childhood, और वो बड़े होके successful हो गए? How come the dysregulation of emotions and success in your life by हाँ. certain designation is calculated? मतलब ये कैसे related है आपस में? Is it related in your point of view? नो, आई गेस सी द थिंग इज कि बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है इस चीज को पहले की जनरेशन ने. एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन से ना बहुत सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं. बिकॉज आप अगर ये बोलते हो कि हमारे पेरेंट्स ने हमको हिट किया बचपन में, ठीक है, तो यू से इट वेरी कैजुअली, बहुत है ना, और आप नॉर्मलाइज कर देते हो. तो वहां पे यू डोंट टेक इट एट attack or a trauma or something, you don't deal with it on that emotional level ki, I had an abusive childhood, I had a traumatic childhood, I was hit by my parents, to accept that उनको उसके लिए ही बहुत अवेयरनेस चाहिए जो नहीं है लोगों में. दैट इज द थिंग. इमोशनल अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है. एंड वो इसीलिए कैजुअली ले लेते हैं बिकॉज उनको पता है कि यार हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए भगवान है. तो अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ किया भी है तो वो कुछ गलत नहीं किया. दैट इज द थिंग. They don't see their parents as normal human beings and they can make mistakes basically. That is the, I guess, difference here. तो रवीना, एक recent incident हुआ है. A 23-year-old boy in Pune has jumped out हम्म. from a building and उनके नोट में कुछ ऐसा लिखा है: I'm sorry, I failed you as a son, Papa. Please forgive me. तो वो हम्म. बच्चा जो है सक्सेसफुली एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस हो गया, आईटी कंपनी में. But Right. 23 years old boy jumped from a building, who has not seen a life, who has not seen anything in life, not married, maybe इतना Right. कुछ अभी जिंदगी में देखने वाला था, और उसने जान दे के आई एम सॉरी पापा, आई फेल्ड यू एज अ सन, ये लिखने हम्म. का आपको, और ये कॉमन है. मतलब इतना ज्यादा न्यूज में आजकल आ रहा है कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर टेकिंग अवे देयर लाइव्स एंड राइटिंग सॉरी नोट्स टू. हम्म. तो कहाँ कमी रह जाती है? अब ये सिनेरियो आता है कि मार खा खा के तो एकेडमिकली तो आपने उन्हें सक्सेसफुल कर दिया, बट ये तो बताया ही नहीं. हम्म. अगर फेल हो जाओ, अगर कुछ कमी रह जाए, तो वापस आके आप बात कर सकते हो, वो सेफ स्पेस देना Exactly. नहीं. ये अब I आप agree. बताइए, सिंस यू हैव ऑल्सो बीन एक्सपीरियंसिंग सो मेनी, talking about toxic parenting, I am not against parenting. First of all, I'm a mother of two myself. हम्म. I have a toddler and I have a teen. बट देन Yeah. माइंडफुलनेस की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जहां हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करके टू आर सक्सेस मीन्स गेटिंग प्लेसमेंट इन अ सक्सेसफुल कॉलेज और अ स्कूल और इन अ कंपनी. वो बच्चा जब अकेला जूझ रहा है पूरे समाज से, पूरी सोसाइटी से, टॉन्ट से, यू नो ऑफिस पॉलिटिक्स से, तो वो किसके पास आएगा? वो हम्म. छोड़ नहीं सकता नौकरी, क्योंकि पापा तो डांटेंगे. Exactly. Yeah. समाज मुझे फेलियर बोलेगा, मेरे फादर एंड मदर को लेट डाउन करेगा, मैं वापस नहीं जा सकता. सो इट्स ओके, हम्म. टेक माई लाइफ इजी. दे Take my फाइंड life. टेकिंग Yeah. अवे दे फाइंड टेकिंग अवे देयर लाइफ इजियर देन गोइंग बैक टू Then deal with the, yeah, टॉक टू I देम. agree. That is very heartbreaking, honestly. So Matlab, tell me I think about it takes this. a lot of courage, Tell me about your yeah, to do that. parenting style. How was your childhood? Do you remember anything from your childhood? Anything that you want to? Yeah, I do remember a few things I would say because my brain was always in the fight and flight mode and freeze mode as well, I would say. So काफी सारी memories तो I think याद ही नहीं आती हैं कि how was it. But I would say कि yeah, this thing was there. Emotional space, that comfort was not there at my home, where you can come, you can express what you're going through, and you won't be judged for that. And parents will be like, okay, it's okay if you have failed. It's okay if you don't want to do this. That space was not there. I mean, my parents were supportive. I'm not saying they were not 100% supportive, but कहीं ना कहीं डर होता था कि if I will fail, how will I face them? How will I deal with that? So that space, I would say, what, and I think ये है ही है, ये इंडियन पेरेंटिंग में, स्पेशली मैं अगर 90s की बात करूं, उस टाइम पे ये नहीं होता था. वो इमोशनल स्पेस नहीं दिया जाता था बच्चों को. पेरेंट्स को नहीं पता था कि कैसे डील करना है. अगर बच्चा क्लास में किसी सब्जेक्ट में भी फेल हो गया, उनको नहीं पता था कैसे डील करना है. दे वर ऑलवेज लाइक के
you have to study hard. You have to get into this college, get this type of course, engineering or और आई थिंक वो whatever is there. कांस्टेंट कंपैरिजन Like कि तेरे से ही नहीं हो पा वो रहा है, था, तो कंपैरिजन था। केटी शर्मा जी या की तुम तो कर लो। फ्रेंड्स से कंपैरिजन होता है। हाँ, हाँ, सब रिलेटिव्स के कुछ बच्चों से होता है। कंपैरिजन होगा, फ्रेंड्स से कंपैरिजन होगा। या कजन। एंड दे वर लाइक कि तुम्हारे, हाँ, कजन्स, या कजन्स हैं आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। तो वो होता था कि शी इज डूइंग रियली वेल, हाउ आर यू नॉट डूइंग एंड यू आर रियली गोइंग वेल, टू सेम यू नो स्कूल, सेम ट्यूशन टीचर, सेम सेम एवरीथिंग। ट्यूशन, सेम क्लास, और तुम एवरीथिंग इज सेम। बोलोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है उस टीचर का, तो वो ये नहीं हाँ, सोचेंगे कि हो सकता है कि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है और बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, या तुझ में या प्रॉब्लम है, यू डोंट वांट टू डू इट। एग्जैक्टली। यू डोंट गिव द चाइल्ड द स्पेस कि जहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर सके, उसको एक्सप्लोर कर सके। बिकॉज सी, एकेडमिकली नॉट एवरी चाइल्ड इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, पेरेंट्स हैव टू एक्सेप्ट दैट। क्योंकि होता यही है कि एक ही स्कूल में जाने, एक ही क्लास में है, तो यू हैव टू बी ब्रिलियंट, यू हैव तो टू क्या स्कोर फिर अबव तो सारे 80s और फर्स्ट आने 90s। चाहिए थे ना रवीना, तो सारे एग्जैक्टली, 1++ आ एग्जैक्टली। गए, वो 40 के 40 क्लास के बच्चे। वही प्रॉब्लम है, वही तो पेरेंट्स नहीं समझते हैं उस चीज को। तो व्हाट इज एंड योर आई वन थिंक इस मैसेज, मामले में, व्हाट इज योर वन मैसेज टू द पेरेंट्स? one message to the parents is give your children the space to experiment in life and to come up to you if they are not doing well, if they are struggling mentally and emotionally. You should give them the space to come up to you and to express. वो उनको जब तक सेफ स्पेस नहीं मिलेगा ना, वो अपने ही अंदर घुटते चले जाएंगे, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ सुसाइड्स टुडे, आई वुड से। बिकॉज उनको ये डर होता है कि पेरेंट्स के पास जाएंगे तो वो तो मारेंगे, वो तो बहुत गंदा गंदा बोलेंगे, तो कैसे डील और करेंगे मैंने आगे जाके उनको लाइफ लेट में, डाउन एंड कर जो दिया, सोसाइटी का प्रेशर है। और मैंने उन्हें हाँ, लेट डाउन कर जो दिया। लेट डाउन कर दिया, एग्जैक्टली। बिकॉज पेरेंट्स की बहुत हाई होप्स होती है ना, दैट इज द थिंग। एंड दे आर कॉन्स्टेंटली या डिस्कसिंग इट विद ऑल द रिलेटिव्स, मेरा या बच्चा प्लेस हो गया। रिलेटिव्स, या हाँ, सोसाइटी में डिस्कस हो जाता है ना कि बच्चा यहाँ गया है पढ़ने के लिए, तो वो तो ही इज वेरी सक्सेसफुल और शी इज वेरी सक्सेसफुल। तो यू टेल मी, रीना, बिकॉज यू सेड you are in your 40s and you are also a mother of children, two children, I guess, yeah. यस यस। So that's great. So how do you think कि मतलब अब जेंटल पेरेंटिंग जो अभी हो रहा है कि पेरेंट्स ने वो पेरेंटिंग स्टाइल चेंज कर दिया है, इज इट वीक, इज जेंटल पेरेंटिंग वीक? देखो ये ना बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, जहां हम जेंटल वर्ड यूज कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि हम्म। जो बच्चे ने मांगा उसको हाथ में पकड़ा दिया और शांत करा दिया, दैट इज जेंटल पेरेंटिंग। Gentle parenting is setting your boundaries right. Gentle parenting is giving the child choices. Gentle parenting is not implementing your wishes and getting them done through your child. Gentle parenting हम्म। is to make the child aware the possibilities. For example, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कल हम मॉल गए। अब मॉल जाने से पहले ही 3 घंटा पहले ही या एक रात पहले ही हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, माइंडसेट प्रिपरेशन, क्योंकि बच्चा छोटा है, हम्म। 3 साल का है। तो हम्म। मॉल में तो it's a pool of toys, it's a pool of distraction everywhere. आइसक्रीम्स भी हैं वहाँ, स्वीट्स भी हैं वहाँ, टॉयज भी हैं वो, क्लोथ्स भी हैं वहाँ, गेम्स भी हैं, सब कुछ है। अब आप नहीं चाहते कि अपना बच्चा जमीन पे लेट लेट के आपसे सब कुछ डिमांड कर ले, लेकिन अगर आपने हम्म। प्रिपरेशन नहीं की, दैट विल हम्म। बिकम अ टॉक्सिक पेरेंटिंग। या तो बच्चा जीत जाएगा उसमें चिल्ला के, क्योंकि आप हम्म। चुप करा दोगे कोई चीज पकड़ा के। और जहां आपको विन विन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रात पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बेबी वी आर गोइंग टू द मॉल टुमारो एंड दीज आर योर हम्म। चॉइसेस, नाउ यू चूज। यू वांट एन आइसक्रीम, हम्म। यू वांट अ टॉय, यू वांट टू प्ले, और यू वांट XYZ, जो भी आपको चाहिए। ये 4 चॉइसेस दे देनी है। 4 चॉइसेस के बाद कहेगा नहीं, आई वांट एन आइसक्रीम। अब आप मॉल पहुंच गए, मॉल पहुंच के फिर वो भूल गया सब कुछ, तो आपने दोबारा उसको रिमाइंड कराना है। यू आर टेकिंग अ टॉय हम्म। दैट कैंसल्स योर प्ले, दैट कैंसल्स योर शुगर आइटम्स, दैट कैंसल्स योर आइसक्रीम, बिकॉज यू आर चूजिंग अ टॉय। फिर से उससे वैलिडेशन लेना है पे करने से पहले। गिव हिम द मनी, पे दिस टू द काउंटर, यू नो, एंड दिस इज योर हम्म। फाइनल थिंग। मतलब उसके दिमाग में वाओ। बैठा देना है। Now, राइट। gentle parenting is weak or gentle parenting is strategic. एग्जैक्टली। राइट। So हेल्दी पेरेंटिंग है। या it is win-win situation. Or I'm not इट इज इन। boasting about it. My son is so prepared now. अभी हम वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। एवरी सेकेंड वीक, फोर्थ हम्म। वीक हम जाते हैं मॉल, जाते हैं हम सब लोग जाते हैं। तो वो उसको पता है हम्म। कि मुझे एक ही चीज मिलेगी, या मुझे टॉय मिलेगा,
या मुझे आइसक्रीम मिलेगी, हम्म या मुझे खेलने को मिलेगा हम्म प्ले जोन में। ही कांट हैव अ प्ले जोन, राइट ही कांट हैव एन आइसक्रीम, ही कांट हैव cookies and then he will also have a toy. No, that's not allowed. हम्म That is gender parenting. दैट्स ब्रिलियंट या Setting boundaries properly. एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि हो या क्या रहा है ना, रवीना, हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं डिस्कशंस में। आई वाज अबाउट टू से दिस या जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, डिसीजन मेकिंग पावर, वो बच्चों की वीक हो जाती है अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करोगे तो। जैसे आपने बोला, आपने उसको चार पांच ऑप्शंस दिए, ठीक है, वहां से ही इज डिसाइडिंग कि उसको कौन सी चीज लेनी है, ठीक यस, है, वहां से पावर उसकी ऑफ डिसीजन चॉइस। मेकिंग पावर आती है, पावर ऑफ चॉइस आती है कि ओके आई कैन चूज दिस एंड यही है, यही मिलेगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों से जहां वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, बड़े होके दे आर एबल टू मेक बिग डिसीजंस इन लाइफ। कंफ्यूजन नहीं होता है, वो क्लैरिटी रहती है दिमाग में। राइट, कि कौन दैट सा इज वेरी करने इंपॉर्टेंट। से मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, वो दैट इज शायद वेरी होता है इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग। पता है, पेरेंटिंग कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है रवीना। इट्स सिंपल। हम्म कॉन्शियसनेस हम्म पेरेंट्स की है। या एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। इट्स अबाउट एंड आई थिंक पेरेंटिंग। अगर इसमें मैं डिफरेंस की बात करूं, जो आपने बोला, जैसे अभी आप जेंडर जेंडर पेरेंटिंग की बात कर रहे हो, जो पहले के पेरेंट्स थे, उनका ये था कि वो चॉइस नहीं देते थे, वो सीधा बता देते थे तुमको यही मिलेगा, ठीक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहिए तो ठीक है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। और तो दूसरा क्या वहां होता था? से आप, हाँ, क्या होता था फिर? टैंट्रम्स। उस टैंट्रम्स होते थे फिर। जो जो अच्छा, जो उसमें वीक क्या बच्चा होता था होगा, फिर? जो वीक बच्चा होगा वो तो हाँ एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो रिबेल होगा वो क्या करेगा? हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड इफ शी ही और शी इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड चॉइस ऑफ आइटम, तो फिर उसको पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट हो जाता था कि दे आर नॉट लिसनिंग टू माई चॉइसेस, दे आर नॉट लिसनिंग टू माई डिजायर्स। तो फिर वो रिजेंटमेंट आ जाता है चाइल्डहुड में। तो आपको लगता है कि वो जब यहाँ रिजेंटमेंट रिजेंटमेंट नहीं आ आएगा। जाता है, धीरे धीरे जो हम्म रिजेंटमेंट और डिस्टेंस आने लग जाता है पेरेंट और चाइल्ड में, तो वो बच्चा या जो है धीरे धीरे कुछ कोई ना कोई ढूंढ लेता है। मे बी अ पार्टनर, एग्जैक्टली या फ्रेंड। वो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वहां पे दे सीक दैट स्पेस जहाँ पे उनकी बात सुनी जाए, जहाँ पे उनके चॉइसेस की वैल्यू की जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। फिर वो बाहर ढूंढते हैं ये सारी चीजें, एंड मोस्टली आई वुड से दे एंड अप इन द बैड कंपनी। बहुत कम होता है कि आपको कोई सही इंसान, कोई अच्छा इंसान मिल जाए, नहीं राइट। मिलता है मोस्टली। या तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस साइन फॉर, स्पेशली फॉर टीन्स, जो घर में जिनकी इट इज बात नहीं सुनी जाती है। तो बाहर कोई या ना कोई ऐसा ढूंढ लेते हैं जो वैलिडेट करता है उस चॉइस को। हम्म तो पी हम्म लेगा, एक बार सिगरेट पीने से क्या हो जाएगा? एक बार मन कर एग्जैक्टली ले, क्लास एग्जैक्टली मजा आता है, सिनेमा देखने चलेंगे, इट इज ऑल फन। अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? आई सी सो मेनी टीनेजर्स अभी जो स्मोकिंग करते हैं, एंड दे आर वेरी लाइक वेरी यंग, आई वुड से। एंड मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ उन चीज के लिए, बिकॉज उनको नहीं पता है व्हाट दे आर डूइंग। जो पेरेंटिंग है वहाँ वो गलत है, ठीक है। तो वो उनको बाहर जाके वो कंफर्ट मिल रहा है, वो वैलिडेशन मिल रहा है। डू यू थिंक पेरेंट चूज सोसाइटीज अप्रूवल ओवर हम्म चिल्ड्रन हैप्पीनेस? हैज दैट हैपेंड विद यू टू? मतलब सोसाइटी या को आई follow गेस कर देना एब्सोल्युटली। और बच्चे का हम्म पसंद नापसंद को वो साइड पे कर देना। बट सोसाइटी क्या चाहती है, हम्म चार लोग क्या कहेंगे, दैट बिकम्स द हम्म टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ द हाउस, कि चार लोग क्या कहेंगे रवीना। वो होता है घर में? हम्म वो है वो कभी? होता है वो तो बहुत होता है। या वो मैंने बचपन से देखा है। ओके, टेल अस, बिकॉज शेयर द थिंग इज, कंफर्टेबल या। आई थिंक सी द थिंग इज, एक तो ये बहुत कॉमन है मोस्टली इंडियन फैमिलीज में, आई वुड से, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई पीपल रिलेट टू माय कंटेंट एज वेल, बिकॉज उनको पता है कि हमारे घर में भी हो रहा है, विच शी इज टॉकिंग अबाउट। तो आई गेस या दिस हैपेंस अ लॉट, क्योंकि पेरेंट्स जो जनरली इंडियन पेरेंट्स हैं, ठीक है, एंड इवन माय पेरेंट्स एज वेल, दे सीक द अप्रूवल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कि आपने अगर लाइफ में कोई डिसीजन लिया है, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, पहला थॉट जो ये आता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, चार रिलेटिव्स क्या लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, वो चार लोग क्या बोलेंगे। एंड आई एम लाइक, कहाँ है वो चार लोग, मुझे भी मिलवाओ। मुझे नहीं दिखते हैं चार लोग। सो दैट रियली सरप्राइजेस मी, आई वुड से। एंड आई गेस या दैट इज ऑफ कोर्स अ रॉन्ग थिंग, आई वुड बट से, आई रवीना, मीन। आप एक टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में कंटेंट बनाते हैं, तो डेफिनेटली जब वो हम्म कंटेंट आपने बनाना शुरू किया होगा,
तो हाँ। 4 लोग आए होंगे कहीं ना कहीं से आपके पिताजी से बात करने के लिए, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? Yeah, I guess in the beginning they never used to like it, and they were like, "Hey, what are you doing? Why are you making content on these topics? Or, is it about us? What are you trying to imply and everything?" And yeah, I guess relatives used to say a lot of stuff, and so starting में हुआ issues हुए थे काफी I would say, but then slowly they got to know कि okay, this is not like this happens in a lot of families, this happens in a lot of homes, and she's speaking up on these topics which are very important to make people feel seen and heard. So yeah, धीरे धीरे they try to understand it. शुरू शुरू में काफी Yeah. दिक्कत हुई वो कंटेंट बनाने में, क्योंकि लोग हाँ. पर्सनली ले जाते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, कि हमारे पे कुछ Yeah. नहीं, तुम कंटेंट। ले जाते हैं, yeah, and I'm like, no, it's don't take it personally, not everything is about you, you know there I actually told them कि there are many toxic parents, narcissistic parents, you don't know about them. बहुत ऐसे parents होते हैं which do a lot of bad to their children. So yeah, I told them about, and they were also very shocked. They were like, we never knew that this kind of मतलब जब parenting आपके मिलियन exists. व्यूज गए होंगे के कंटेंट पे, तो उनको समझ आया होगा हाँ. कि इतने मिलियन लोग Yeah, रिलेट कर पाए हैं जो आप बोल relate कर रहे हैं. रहे। राइट। Yeah, yeah. And recently, what happened is that a girl recognized me from my work. She came up to me and she was like, "Okay, I saw you on Instagram. You are an influencer and you're a content creator. And can I get a picture with you?" She was very impressed by my work. So I felt very special, I would say, because that was a special moment for me. यस। Yeah. So I told this to my parents. So they felt very proud of me. They were very happy about it. Okay, you are doing the right thing. Ravina, if given a chance you to go back to your Hmm. younger self, what is the one message Hmm. tell to that young teen Ravina? Okay. Young teen Ravina was a very silent kid, I would say, Or was and she she gone never silent, used. Ravina? Or she got silent while growing to a teen? Maybe I would say, yeah. Actually, the voice was never heard, the opinions were never respected, so she never had that space to express herself, to be herself, basically. So yeah, that's why she was a silent child, I would say, and a very introvert, very introvert. So, yeah, I would say to her, ki, your opinions matter. You matter. Okay. You think that you don't matter, but you matter. And your voice matters a lot. Okay. Even if people are not hearing it right now, later on they are gonna hear it and they are gonna, value you for that. So, yeah. And life can turn around very drastically. You don't know what's gonna happen, Keep believing on she yourself. had very different plans for her. Yeah, she had very different plans for their life, and I guess they turned out very differently. But yeah, I'm very glad. So, Ravina, what happens sometimes the parents taunt their own children so much and make them feel so Hmm. कि मैंने तेरे पे इतना पैसा लगा दिया, मैंने तेरे लिए सारा अपना जॉब छोड़ दिया, अपना करियर छोड़ दिया, अपने ड्रीम्स छोड़ दिए, एंड नाउ यू वांट टू क्विट योर एजुकेशन एंड वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. This has been coming very frequently to me from the children who are doing creation, and from the parents also whose children are doing Hmm. content creation, कि मैम इसका फ्यूचर क्या होगा, हम लॉयर हैं, हम डॉक्टर्स हैं, और ये देखो कंटेंट Hmm. क्रिएटर बन गया, अभी इसका क्या करेंगे हम, ये कैसे आगे लाइफ सरवाइव करेगा? सो व्हाट इज योर ओपिनियन? Hmm. हैव you experienced that kind of environment ever at home? Yeah, I guess yes, I did. And parents, ये बहुत common है अभी जो content creators लोग बन गए हैं ना. तो I understand this is a very new field, ये अभी अभी आया है कुछ टाइम पहले ही. तो of course the fear is valid, I would say. जो पेरेंट्स का डर है, that is valid. Because they have not seen such kind of environment before. उन्होंने उन्होंने चार पहले यही देखा जनरेशन है कि देखा है। चार इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टर बन गए आप. हाँ, कि it is very difficult for them, to see their child doing something very different, जो पहले exist ही नहीं करता था. ठीक है. तो डर जायज है. But the thing is, you have to see the talent of your child. If your child is experimenting in something, they are doing something, गिव देम सम टाइम. ठीक है. मुझे प्राजक्ता कोहली का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी. शी इज अ
big YouTuber, content creator, actress, everything. And when she asked her father, "Ki, I want to do YouTube," and she was working in as a radio jockey. So she asked her father, "Ki, I want to become a YouTuber. Just give me 1 year. I'll prove it to you if I can do it or not. अगर 1 साल में हुआ तो ठीक है, otherwise I will quit." And he gave her that space. Unknowingly, अब I would say permission दी, या वो faith रखा उन्होंने उसके father ने कि कि okay, if she is experimenting in something, if she is trying, वो trust बहुत जरूरी है, वो faith बहुत जरूरी होता है कि आपके बच्चे में जो टैलेंट है वो जरूरी नहीं है सिर्फ academically ही टैलेंट हो। So Ravina, tell me something. When Indian daughter, especially, they get हम्म। raised, तो उन्हें यही सिखाया जाता है कि बेटा खाना बनाना सीख लो, बिकॉज आपकी शादी हो हम्म। जाएगी तो आपको ये सुख मिलेगा एंड यू विल बी हैप्पीली मैरिड। तो खाना बनाना हम्म। को ये बहुत एसोसिएट करना किया जाता है कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, चाहे वो आप आईपीएस बन जाओ, चाहे चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप कुछ भी प्रोफेशन में चले जाओ, बट इफ यू डू नॉट नो हाउ टू हम्म। कुक फूड, you can't keep your husband happy and your in-laws happy. What do you think that how much it is applicable in modern era, जहाँ पे लड़कियां वर्किंग हैं और बेटर अर्न कर हम्म। रही हैं बहुत सारे केसेस में, और हर राइट। चीज में बेटर है, तो ये बहुत जरूरी है कि खाना बनाना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। आई थिंक द वे इट शुड हम्म। बी पोर्ट्रेटेड कि खाना बनाना सीखो बच्चे, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, यू शुड नो योर बेसिक्स, राइट। बट ऐसा बोलना कि या। खाना बनाना सीखो क्योंकि इन लॉज खुश नहीं रहेंगे, हस्बैंड खुश नहीं रहेगा, हम्म। लाइक व्हाट इज, कैन वी ब्रिंग सम चेंज इनटू दैट फ्रॉम इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल? हम्म। Of course, we can definitely bring a change in that. And starting तो घर से ही होगी, of course, and especially with mothers, I would say. Because सिखाते तो mothers ही है, right? कि बेटी को सिखाया जाता है, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, कि ससुराल जाके खाना बनाना है, इन लॉज को जाके खाना खिलाना है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कुकिंग, एंड इट इज द थिंग इज फीडेड इन योर माइंड, लाइक यू हैव टू सर्व अदर्स। ठीक Yes. है, यू आर नॉट लर्निंग कुकिंग एज अ बेसिक स्किल, एज अ सर्वाइवल स्किल। यू आर लर्निंग कुकिंग टू सर्व योर इन लॉज, टू सर्व योर हस्बैंड, टू कीप देम हैप्पी। Okay. So I guess this used to happen, and still it does happen, I would say, in many many families. And but this how this can change is that you can teach your daughter that, see, first of all, if you have a son and a daughter, both, दोनों उनको दोनों को खड़ा करो एंड दोनों को सिखाओ। टीच बोथ ऑफ देम टू लर्न कुकिंग एज अ सर्वाइवल स्किल, एज अ बेसिक स्किल। ठीक है, सो दैट आपको किस कल को, इफ यू नीड टू ईट फूड, इफ यू वांट टू इफ यू आर लिविंग अलोन फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू आर लिविंग ऑन योर ओन, यू शुड नो कुकिंग। ठीक है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सो माइंडसेट चेंज यहाँ करने से की द डॉटर, जरूरत है। माइंडसेट ही गलत हाँ, है ये बताना कि एब्सोल्युटली, खाना बनाओ क्योंकि दूसरों को सर्व करना है। खाना बनाने से दूसरों को सर्व करना, क्योंकि खुद को सरवाइव एग्जैक्टली, करना है, और दोनों को खुद के इसका लिए मतलब करना है। ये है से कि या। दोनों को सिखाओ ना। ब्रिंग दैट इक्वालिटी या। फ्रॉम योर होम, स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम। Yeah, and I guess this is very important. If you are a mother of a son, you have to teach your son that your wife is not coming here to cook food for you. She यस। is not coming here in this home to serve you. Okay, she is your equal partner. So do not expect that from her कि वो तुम्हारे लिए किचन में खड़े होके खाना बनाएगी और तुम आराम से बैठ के खाना खाओगे। ठीक है, ये पहले के दिस यूज टू हैपन इन अर्ली टाइम, आई वुड से 90s एंड ऑल। अब नहीं होता ये। Girls are totally changed now, even if they are working, okay, they want a equal partner जो उनकी 100% help कर सके, while cooking, while taking care of the house and stuff like that. They want that partner now. Okay, so I guess ये mentality सिर्फ लड़कियों में ही नहीं, लड़कों में भी change करना बहुत जरूरी है, because they expect that. उनको ये चाहिए होता है कि our mother was cooking food for us, ठीक है, and now our wife will be cooking food for us. So they basically want a servant. They want a maid. That is very wrong. राइट। एंड Yeah. कई बारी बहुत अभी लेटेस्ट माधवन के सीरियल में मैं देख रही थी, वेर इन ही सेज टू द गर्ल, हाँ. आई विल अलाउ यू टू गो टू वर्क, Allow you. Yeah. and she says Exactly. for you to allow me to go to work and everything, I'm your equal partner. Yeah.
तो पेरेंटिंग में ये सिखाना Absolutely. कि हम दोनों इक्वल हैं, Very important. तो लॉ नहीं कर सकते हैं आप Very किसी को कुछ important. करने के लिए। इट्स अ हेल्दी Yeah. डिस्कशन। Men have that. Yeah, I agree. And men have that audacity to say this to you, कि we are allowing you. And ये कहाँ से आती है? ये mentality कहाँ से आती है? This comes from their home. This comes from their home. फ्रॉम They पेरेंट्स। have seen their fathers, yeah, they have seen their fathers allowing their mothers, to do something in life, right? And ये जो आपने scene की बात बोली ना, there was a scene in the same series where there was a husband wife जो माधवन के जो brother थे, या right? And the guy was saying to his wife that I have allowed you to work, and she was like, who the hell are you to allow me? You are actually no one to allow. She's an individual person. You have to respect her as an individual person. That is very, very important. इट इज सेड कि अगर Hmm. आपको अपने बचपन से कोई भी रिलेटेबल चीजें याद नहीं है, आपका बचपन आपके टीन Hmm. शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू रिमेम्बर एवरीथिंग व्हेन यू बिकेम अ टीन, दैट मीन्स दैट यू Hmm. गॉन थ्रू अ वेरी टॉक्सिक चाइल्डहुड ट्रॉमा। मतलब अगर आप वो डिटैचमेंट फेज से गुजरे हैं, अगर आपको बचपन से लेकर Hmm. आपके टीन तक का प्रोसेस याद ही नहीं है, your father dropping you, Hmm. mother picking you up, they feeding you, happy family, all of those Hmm. things are missing from your life. That means you have unknowingly gone through a trauma. Have you experienced that? Hmm. I guess somewhere I've experienced that, I would say. And as you said, it was unknowingly because you cannot blame your parents for that. Because the thing is, the parents of that time, they didn't know how to give that emotional safe space at home. You know, they used to provide everything financially, they used to give you everything that you deserve as a child, as a kid. Okay, आपकी सारी जरूरतें पूरी करी जाती हैं. But the thing is, when it comes to giving that safe space at home, it's not there. And I guess the environment at home plays a huge role in that. You know, when you see your mother struggling, when you see anger issues of your father. So I guess that's how the nervous system gets damaged because of that, I guess. तो It रवीना, really एक impacts the nervous एक system. एक और चीज है कि बहुत सारे केसेस में मैं ये देखती हूँ कि फादर्स स्पेशली क्या करते हैं कि Hmm, hmm, शाउट करके चिल्ला के घर में सबको चुप करा देते हैं, hmm, मदर्स को भी hmm. और Yeah, बच्चों को भी। और मदर्स क्या करती हैं इस yeah. सिनेरियो में, बच्चों को चुप करा देती हैं टू मेंटेन दैट सैनिटी एंड साइलेंस पीस एट Hmm, होम। बट अननोइंगली yeah. अगेन ये एहसास किया ही नहीं जाता कि जितना भी आप साइलेंट 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 पीस 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 कर रहे हैं, ये सारा एक चाइल्ड Hmm, ट्रॉमा बन के जब वो बच्चा अडल्ट बनता है उस समय निकलता है। hmm. Then they have anxiety issues, निकलता. palpitation, hand sweating, hand shivering. Yeah, That's how the people are yeah. coming to us to take therapy. Hmm, कि मुझे नहीं पता ये मेरे hmm. साथ क्यों हो रहा है, बट जब भी मैं किसी को चिल्लाते हुए सुनता हूँ या सुनती हूँ तो आई कांट, हाँ, yeah, ये मेरे साथ होता है। yeah, yeah. But this all is I coming get that. from, I get that. yeah, so it is all coming from your childhood. It is coming from your childhood. Can you relate Absolutely. to that? Any opinion on that? Yes, sometimes I have seen this thing in my home as well. Okay, I've seen my father shouting angrily and giving silent treatment or as well. And ये होता था कि मदर को चुप कराया जाता था और मदर बच्चों को हमको बोलती थी कि यू हैव टू बी साइलेंट, यू हैव टू मेंटेन द पीस द सैनिटी ऑफ द हाउस. एंड दैट्स व्हाई आई गेस मैंने बहुत एब्जॉर्ब करी है वो चीज अपने चाइल्डहुड में, बहुत ज्यादा. एंड इट रियली इम्पैक्टेड माई होल नर्वस सिस्टम, तो जो क्या आपकी वो अभी बॉडी का भी जो आपको नेचुरली वो जिस तरह चैप्टर्स से अभी वर्क भी करती. रिपीट होते हैं आपके जर्नी में एज एन अडल्ट? अभी भी आपको लगता है कभी कभी चिल्स आते कहीं हैं, ना कहीं आता है तो इट ट्रिगर्स यू, ऐसा होता है? it triggers me whenever I see a stranger person shouting. It really triggers me and I feel very very uncomfortable because it triggers my childhood trauma. हम्म। And I feel like वो anxiety होती है, palpitations होते हैं, your nervous system goes on fight and flight mode. So yeah, it is still there, I would say. It is not 100% healed. या इट इज सेड Yeah. व्हेन यू आर नॉट हील्ड प्रॉपरली then you end up bleeding on some innocent. That means
अगर आप प्रॉपरली हील नहीं हुए हो तो आप ऐसे हम्म इंसान पे जाके चिल्लाओगे या उसको प्रेशराइज करोगे, हम्म उसकी कोई गलती नहीं है. हम्म In motherhood cases, हम्म mothers who get yelled and shouted by their partners or in-laws to release that bleeding, they bleed on their innocent children by hitting, yelling, and shouting at them. okay This is okay how it happens. I have not seen that actually. Yeah, Okay, that maybe you are happens, not able right? to relate it, but this is how it happens. Yeah. जेनरिक इमोशन आई Okay. एक्सप्लेन यू. जो इंसान फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बहुत सारा टॉर्चर होके आए हो, आप घर आए हो, तो आपका Hmm. छोटा भाई बहन है, Hmm. तो आप उसको किसी Hmm. भी चीज के लिए गुस्सा कर दोगे कि तूने टीवी का रिमोट ऐसा क्यों रखा, Hmm. फ्रिज में बॉटल क्यों नहीं भरी है, और एनीथिंग विच इज नॉट Hmm. वेरी नॉर्मल इन जनरल डेज, बट उस दिन के लिए Yeah. आपका एंगर वहां एक बच्चे पे निकल जाएगा क्योंकि वो इनोसेंट है और वो वीक है और वो आपको Hmm. वापस आंसर नहीं करेगा. Now, Yeah, that happens in families. Yeah, that happens in families. that's And in I guess also. maybe I've heard such kind of cases. Yeah. Yeah, In that happens. psychology, it's called And displacement वो of मदर anger. अपना frustration निकाल देते हैं पूरा का पूरा. जी. Yeah. और साइकोलॉजी में हम ऐसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर, मतलब किसी का गुस्सा Hmm. पे निकालना, किसी पे. क्योंकि वो Hmm. जो जिस पे आप निकाल रहे हो वो वीक है और वो आपको रिबेल नहीं करेगा. Hmm. Right. That's how it works. Absolutely. Oh, so Ravina, we had a very good time talking to you and sharing your opinion around parenting. It's a very different perspective of Yeah. parenting. We are not against any of the parents. We're just discussing how the No, not parenting at has all. evolved, how unknowingly parents become toxic, make Hmm. environment toxic, and Yeah. contribute to the distress and dysregulation of emotion among their own children. The purpose of this interview is Absolutely. only to spread a message for the parents to be conscious, mindful, and calm. And gentle parenting is Yeah. not weak. Gentle parenting is a planned parenting, wherein you plan things for the betterment of the child and for the betterment of yourself. It's a win-win situation. Yeah. It is. Absolutely. Hope you Yes. enjoyed the interview and maybe you can I really enjoyed it. maybe you can contribute a little more in your content going forward from different perspective now onwards. Yeah. Yes. So anything from your end that you wish? Absolutely. Yeah, this is really good. Thank you so much for having me, Reena. And yeah, I never had a podcast before, so this is very exciting for me. Very good. That's it. And thank you for the amazing questions, I would say. Questions was really good. And we had a very insightful conversation. Like I got to learn a lot about gentle parenting and आजकल जो parents कर रहे हैं, I got to learn about that. So good to see the change, I would say. One thing I would like to say to all the parents out there, you know, if you don't have a good relationship with your children, okay, either they are teenage or adults or whatever their ages, you know, they don't, children don't see you as your enemies. Okay, they really want your validation, your love, your support. ठीक है. वो आपको लगता होगा देख के कि your children might hate you, your children don't like you can still have that good relationship with them. All you have to do is just provide them the safe space, that emotional space to express themselves, to be there for them. That is very important. Hear to their stories, listen to them calmly and kindly. You have to be a kind parent first of all. That is very important. And then वो रिलेशनशिप कैसे बदलेगा ना, इट विल चेंज ड्रास्टिकली, आई एम टेलिंग यू. बिकॉज पेरेंट्स को ये लगता होगा कि वी अब जो हो गया वो तो हो गया, वी कैन नॉट चेंज आवर रिलेशनशिप विद आवर चिल्ड्रन, बट दैट इज नॉट ट्रू. You can still work on that and things can still come around, I would say. Amazing. Yeah, I think very important message, Ravina, sent very politely and calmly. कि कोई उम्र yeah. नहीं होती है पेरेंटिंग करने की. जब भी आप चाहते हैं बच्चे के साथ अच्छा Hmm. रिलेशन बनाना, आप उसे बुलाइए और उसे बात कीजिए. हो Absolutely. सकता है वो पहली बार में बात Yeah. नहीं करे, दूसरी में नहीं करे, 10वीं बार में करे, बट वो भी अंदर से बात करना Hmm. चाहता है. और डेफिनेटली ये एक गेम Yes. हो सकता है. Yes, I think parents have to be non-judgmental. That is very important. As soon as you judge the child now,
वो बैक आउट कर जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आई एम नॉट बीइंग लिसन्ड हियर, माय ओपिनियन इज नॉट वैल्यूड हियर। Maybe I तो will get insulted. अगर, या एग्जैक्टली, दैट इज वेरी, सो आई गेस वो बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको वो देना पड़ेगा उनको, वो स्पेस, तभी बात बनेगी। Okay. So, या, Ravina, thank you so much. We're wrapping up this podcast and we look forward to see you again. ग्रेट, Okay. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hello, parents. If you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.